सर पूछ रहे डॉक्टर So, good afternoon, everyone. I am Dr. Neeraj CRD. On the behalf of RC Delhi 3, I welcome you all on today's live session on the occasion of World Mental Health Day. As we all know, World Mental Health Day is celebrated every year on 10th October globally. However, at IGNU, we are celebrating the entire month of October to promote mental health and to create awareness about mental health issues. On this occasion, we are honored to have with us our esteemed resource person, Dr. Kishan Kumar Soni. I welcome you, sir, on this program. Before we start today's program, I like to invite our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma, for formal welcome address and brief about today's program. Over to you, sir. Thank you, Dr. Neeraj. A very good afternoon to all dear colleagues and Good afternoon, sir. all dear students. I welcome you all to today's a very special webinar, which, as Dr. Neeraj has just informed you, we are celebrating the mental health, actually not a day, rather not a month, but I think that we should call it a year. And just like we are always aware of our physical health, we must also be aware about our mental health throughout the year. So it is not a issue of a single day or a single week or a single month. Rather, it is a issue of 24/7, all days of the year. And to celebrate this day, it is a very proud moment for all of us that today we have Associate Professor PGIMER Chandigarh, Dr. Krishna Kumar Soni ji. I also welcome you, sir, on behalf of our Regional Center Delhi 3. And Thank you in very this much. meeting, we are also having our colleagues from other regional centers. As we can see on our screen, Regional Center Kolkata is available with us to attend this meeting. I welcome you, our colleagues from RC Kolkata also. And this program will be also watched live and later on recording also by our other colleagues, our dear students, and even general public also, because we will upload the recording of this program on our RC YouTube channel. Because we also believe in awareness. Mental health is such an issue which cannot be taken care of without awareness. And to make the masses aware about our mental health issues, various challenges, we need to reach out to each and every one. Only then we will be able to take care of various types of issues and challenges related to mental health. So I welcome you all once again, our dear colleagues at IGNU headquarters, IGNU regional centers, our regional center Delhi 3 colleagues, and most importantly, our IGNU students. Basically, most of the students which we have invited for our this today's program belong to MA Psychology program, but this program is open to other learners of other programs as well. And I thank Dr. Neeraj for kindly making all this program a very coming true dream, a dream coming true. And she has very well coordinated it with the help of Dr. Krishna Kumar Soni ji. So thank you, madam. Thank you so much. And I once again welcome you all. Thank you so much. Thank you, sir, for your introductory remarks. So, further proceed this program, I would like to take a moment to introduce our esteemed resource person, Dr. Kishan Kumar, Associate Professor in the Department of Clinical Psychology and a consultant in Child and Adolescent Psychiatry at Postgraduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh. Earlier, he also worked with different organizations like the PGIMS, University of Health Sciences,
National Brain Research Center, Department of Biotechnology under the Government of India. He has published more than 55 research papers in various national and international journals. He has edited 2 books and contributed over 10 book chapters. He has successfully directed 6 projects funded by ICMR and the Department of Science and Technology. He also nominated as a member of the State Mental Health Authority by Governor of Haryana. He also offers his expertise service to esteemed bodies such as the Union Public Service Commission, Haryana Public Service Commission, Director of Education SGPC, Madhya Pradesh Public Service Commission, and more. He has been honored with the Annual Research Foundation Award, J.C. Boral Award, and the R.L. Narang Award and S. Tiwari Award for his significant contribution in the area of knowledge and attitude of caregiver of individuals with dementia. So the list is much more. Without taking much time, I would like to invite our resource person, Dr. Kishan Kumar Soni, to please express his valuable insights on this occasion. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Neeraj. I must be thankful to Dr. Ashok Sharma sir and all the administrative official of IGNOU and definitely the pillar of this student only. So my concern is that we want to make it more interactive. Good afternoon, Dr. Neha. How are you? I'm good, sir. What about you? Yeah, I'm fine. So today we are discussing very, very sensitive topic and very, very important topic. Like Dr. Ashok has started with this particular line, like we are not celebrating for week or year, but that is a part and parcel of life. Yes, sir, this is true. Because whatever we are seeing in clinical practice in PGI, Chandigarh only, or wherever we used to go, the mental health will become a boom. This will become a pandemic. Just try to note down this particular information. If we say what can be the illness in future, there would be 2 illness. One would be cancer, another would be psychiatric illness. ये 2 major issues हैं जो हम day to day life में देखते हैं. I will try to make it more comfortable to student also. We'll try to make it bilingual. Or if somebody have any other language issue, please pardon me. So basically, these 2 issues is very, very important when we talk about mental health. As we said, this is a scenario जो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं. लेट मी शेयर फ्यू एक्सपीरियंस विद यू पीपल. पहले हम मेंटल हेल्थ की जब बात शुरू होती थी या बात करते थे, तो अगर आप याद करेंगे अपने पूर्वजों की बातें, तो दे यूज्ड टू से कि सारी बीमारी पेट से शुरू होती है. नाउ दैट सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड. अभी सारी बीमारी दिमाग से शुरू होती है. कोई भी डिसऑर्डर ले लो आप. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, you can start from depression, whatever you can think, that will start from your brain first. The second major important aspect here, if we are saying everything is started from brain only, or if we talk about the etiological factor, जब हम कारण की बात करते हैं mental health में, तो हम सबको पता है there is 3 major reason. कुछ biological reason होते हैं, कुछ psychological reason होते हैं, कुछ social reason होते हैं, जिसको हम biopsychosocial model बोलते हैं जब हम mental health की बात करते हैं. और जैसे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको शायद आइडिया होगा कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, जब हम बात करते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए पेशेंट्स को, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. सो यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप समझने की कोशिश करें. इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर की, फॉर एग्जांपल जेनेटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, या इनहेरिटेंस की बात करूं, प्रीमैच्योर डिलीवरी की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि डिलीवरी के टाइम कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है बच्चे के साथ, दैट वी कांट कंट्रोल. जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मेंटल रिटार्डेशन है, उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. या फिर अगर हम बात करें कि मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है फैमिली में, किसी को सिज़ोफ्रेनिया, किसी के पेरेंट्स को, और बच्चे को सिज़ोफ्रेनिया हुआ, वी कांट डू एनीथिंग मच मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर फिनोमेना. लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि साइकोसोशल फैक्टर वी कैन मैनेज, जो हमारे हाथ में है. एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइकेट्री, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेंटल हेल्थ. आप कोई भी सिनेरियो उठा के देखें जहां पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी, साइकोसोशल फैक्टर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके बताता हूँ. आप लोगों ने सुना हुआ एक बड़ा फेमस एक इंसिडेंट हुआ था, निर्भया रेप कांड, जो दिल्ली में हुआ था. उसके जो विक्टिम को अगर आप देखेंगे ना, उसका जब साइकोलॉजिकल प्रोफाइल या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किया गया, उसके जो विक्टिम थे जो तिहाड़ जेल में थे, तो उनका फैमिली का सेम एनवायरनमेंट मिला था.
सबकी फैमिली में डिस्पोर्ट था, सबकी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस था, सबकी फैमिली में सब्सटेंस अब्यूज था, सब जो बिलोंग करते थे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते थे। इसका मतलब साइको सोशल फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए हम बात करते हैं कि हमारी जो रियरिंग हुई है, जो बचपन हमारा जैसा रहा है, हमारी जैसी फैमिली रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो साइको सोशल फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा फिनोमिना जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ की, जब मैं बात करूं, आप लोगों ने बहुत सारी बीमारी के बारे में सुना होगा, जैसे सिक्सोफेनिया होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसका जो प्रिवलेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोगों से पूछूं इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू कैन इंटरेक्ट दिस सेशन, तो आपके हिसाब से सिक्सोफेनिया का क्या प्रिवलेंस है इंडिया में? एनी आइडिया कितना परसेंट प्रिवलेंस है सिक्सोफेनिया की? एनीबॉडी वॉलंटियर? नो? अगर मैं सिक्सोफेनिया की बात करता हूँ इंडिया में, तो उसका प्रिवलेंस है 1%। 1% लोगों को सिक्सोफेनिया होता है। और अगर मैं डिप्रेशन या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करता हूँ, तो प्रिवलेंस विल बी 5 to 7%। अब इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये है कि अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, जितनी भी मेजर स्टडी हुई है वो ये बोलते हैं कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, तो मोर देन 49% to 52% लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। मैं साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिसमें एंजाइटी भी हो सकती है, जिसमें स्ट्रेस भी हो सकता है, जिसमें माइल्ड डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी। और एक रिसेंट स्टडी हुई है अभी दिल्ली में, दे आर सेइंग मोर देन 49% ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग विद साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो हमारी सबकी लाइफ में वी आर, everybody is having stress, everybody is having mild fluctuation of mood। यहाँ पे हम मेडिकेशन की बात नहीं कर रहे कि उन सभी 49 to 50% लोगों को मेडिकेशन का जरूरत है। इन 49 to 52% लोगों को सिर्फ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कैन ट्रीट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेंटल हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जो हम मैक्सिमम डोमेन देख रहे हैं मेंटल हेल्थ का, जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको हम काउंसलिंग के थ्रू, टॉकिंग थेरेपी के थ्रू, बातचीत से ठीक कर सकते हैं। चौथा मेजर फिनोमिना क्या है? WHO ने ना बड़े एक अलार्मिंग वो दे दिया कंडीशंस। ही सेड कि अभी प्रिवलेंस इतना बढ़ रहा है मेंटल हेल्थ का कि आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं, तो अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं तो एक को मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की बात करें या मेंटल हॉस्पिटल की बात करें, इंडिया में नॉट मोर देन 5 to 6। और अगर उनकी बेड कैपेसिटी की बात करें, नॉट मोर देन 6000 or 7000, इंक्लूडिंग ऑल द मेंटल हॉस्पिटल। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.40। यू कैन सी द गैप बिटवीन मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। दूसरा, अगर मैं पर्सपेक्टिव बात करूं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, रिसोर्सेज की बात करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या नर्सिंग या सोशल वर्कर अवेलेबल नहीं है इंडिया में। दैट इज नॉट मोर देन 25,000। और हमारा पॉपुलेशन कितना है? 1.42। जस्ट फील द गैप। इसलिए WHO बोलता है कि हम ट्रीटमेंट देने की अवस्था में नहीं है। वी कांट प्रोवाइड exactly medical treatment to all the patient. So here we are talking about preventive aspect of mental health. इसीलिए WHO बोलता है, CBSE, NCERT ये बोलता है कि अभी हमें बच्चों को कुछ प्रिवेंटिव स्किल सिखाना है मेंटल हेल्थ में। दैट प्रिवेंटिव स्किल कैन बी लाइफ स्किल ट्रेनिंग, जो आपने देखेंगे बहुत सारी जो 10 लाइफ स्किल की बात करते हैं CBSE, NCERT, उस पर हमारा फोकस है। हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे फोकस करके एटलीस्ट इस इशू को टैकल कर सकते हैं। चौथा, और भी इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हर एज के हिसाब से अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही अम्ब्रेला में सबको फिट कर सकते हैं। चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, तो इट स्टार्ट फ्रॉम ADHD, देन ऑटिज्म, देन ODD, कंडक्ट डिसऑर्डर, और लास्टली एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इतना ज्यादा प्रिविलेज बढ़ा है। मैं लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू पीपल। व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडी, व्हेन आई वाज फिनिश्ड माय स्टडी फ्रॉम CIP एंड इमेंस, हमको 2 साल में 30 ऑटिज्म के पेशेंट नहीं मिले। जस्ट फील दिस गैप। 2 साल में हमको 30 पेशेंट मिलना एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए। आज हम मंथली 30 पेशेंट देख रहे हैं क्लिनिकल सेटअप में ऑटिज्म के। इतना ज्यादा प्रिविलेज कैसे बढ़ा? सेम चीज ADHD के साथ है। अगर आप देखें, बहुत ज्यादा ADHD के केसेस पहले नहीं थे, लेकिन अब जो सिनेरियो देखेंगे, दिस इज जस्ट लाइक ए फ्लड। एक 7 साल का बच्चा आके हमको बोलता है कि ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड। ऐसा मन करता है कि 11वीं मंजिल पे जाऊं और कूद जाऊं।
you just feel the scenario. That is a major change when we talk about mental health issues. So ये सारे issues इतने vulnerable हैं, इतने burning issues हैं, जिसको अगर अभी हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे then problem will start. सेम एज ग्रुप अगर मैं एडोलसेंट की बात करूं, उसका प्रॉब्लम भी बहुत बहुत बड़ा है. अगर आप देखेंगे एडोलसेंट में बहुत मेजरली बोलते हैं कि एडोलसेंट जो पीरियड है ना, वो बहुत इंजॉयबल मोमेंट भी है, एट द सेम टाइम दैट इज मोर स्ट्रेसफुल एंड ट्रबलेंट बिहेवियर ऑफ लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंजॉयबल है, लेकिन अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे इट विल बिकम मोर स्ट्रेसफुल, मोर ट्रबलेंट. दैट इज एडोलसेंट. और आप एडोलसेंट ग्रुप में एक छोटी सी चीज सोच के देखिए, एक 12 साल का लड़का है और एक 12 साल की बच्ची है. इन दोनों के नीड अलग है, दो एज रेंज से, पर दोनों का नीड अलग अलग है. इवन अगर हम 12 साल के लड़की को दो लड़कियों को कंपेयर करते हैं, या एक की एज 12 इयर्स है, एक की एज 16 इयर्स है, दोनों की नीड्स अलग अलग है. तो एडोलसेंट की इतनी वैरायटीज ऑफ नीड्स है, वो इतना क्रिटिकल एज ग्रुप है जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी मिसमैच करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी केयरलेसनेस होगी, प्रॉब्लम विल स्टार्ट. द बेस्ट एग्जांपल इज अब्यूज. अगर किसी के बच्चे में कोई हिस्ट्री ऐसी मिलती है फिजिकल अब्यूज की, इमोशनल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज, आप देख सकते हैं पूरा लाइफ चेंज हो जाता है बच्चे का. इसलिए हम बात कर रहे हैं बहुत साइकोसोशल इश्यूज है जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. और जो ये सेशन हो रहा है उसका मतलब ये है, एटलीस्ट वी कैन प्रोवाइड दैट अवेयरनेस प्रोग्राम. मेंटल हेल्थ को लेके जो हम बड़ी सेंसिटिव चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, एंड मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वी कैन शेयर. जब आप यस सर, इन प्रॉब्लम्स को फिर टैकल कैसे किया जाए? क्योंकि आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब खुल के तो बताएंगे भी नहीं, और अगर डांट दिया तो वो फिर दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं. डेफिनेटली नहीं, हम उसको डिस्कस करते हैं कुछ मैनेजमेंट इश्यूज पर ना. जैसे एज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सबका मैनेजमेंट जो मॉडलिटीज है दैट इज डिफरेंट है ना. जैसे बच्चों को कैसे सर, मुझे तो पर्सनली मेरा डिस्कस करना है. हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली विल डिस्कस. सर, मेरे हस्बैंड खुद साइकियाट्रिस्ट है, बट वो मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं. मैं उनको ये कह देती हूँ, जाओ ना, खुद पागल हो. दैट वी विल डिस्कस डेफिनेटली, है ना. तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो बिल्कुल राइटली आपने बोला है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत सेंसिटिव है. जैसे मैंने बताया कि हम बहुत सारी चीजों को तो ओपनली डिस्कस कर लेते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज को नहीं ओपनली डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा स्टिग्मा है इसके साथ. सो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, एडोलसेंट के साथ जो मैं बता रहा हूँ और चाइल्ड के साथ जो बता रहा हूँ, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बहुत सारा चेंज आया है. अगर आप ज्यादा दूर जाके मत देखें, हाँ पोस्ट कोविड अगर आप देखेंगे ना, सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड. चेंज का मतलब एक स्टेट में स्टडी हुई है मेंटल हेल्थ की, वो बोलते हैं 137% केसेस हैज बीन इंक्रीज्ड. अगर मेंटल हेल्थ की मैं बात करूं, 137% केसेस हैज बीन इंक्रीज्ड. उसमें सारे फिनोमिनास हैं जितनी भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप मेंटल डिसऑर्डर सोच सकते हैं, सब कुछ है उन बच्चों में. आजकल के बच्चों में आईक्यू बढ़ रहा है लेकिन ईक्यू कम हो रहा है. दैट इज अ मेजर इशू. आजकल के 10 साल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, शायद हम लोग उतने स्मार्ट नहीं है. वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, बट दे नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल. हमसे कहीं ज्यादा अच्छे फंक्शन उनको पता है. हम सिर्फ मोबाइल यूज करते हैं सुनने के लिए, उनको पता है एग्जैक्ट मोबाइल का यूज क्या हो सकता है. 10 साल का बच्चा है टॉकिंग अबाउट, क्योंकि उनका आईक्यू बहुत अच्छा है. बच्चों का आईक्यू इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, बट द बैड पॉइंट इज दैट उनका जो ईक्यू है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज. अभी एक फैमिली में 2 या 3 बच्चे हैं, मैक्सिमम 1 या 2, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होते. वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, वो अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाता. शेयरिंग वाला फीलिंग डेवलप नहीं हो पाता. तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से वो जो एरियाज है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है और प्रॉब्लम विल स्टार्ट. पेरेंटिंग भी आजकल डिफरेंट है. अगर हम आज की पेरेंटिंग की बात करें तो दैट इज नोन एज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग. जैसे हेलीकॉप्टर घूम घूम करता रहता है ऊपर आसमान में, वैसे ही पेरेंट, बच्चा क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, एवरी टाइम दे आर जस्ट रोमिंग ऑन द हेड ऑफ दैट चाइल्ड. बच्चों को हम भेज नहीं रहे. हाँ, ये वी मेड मोर डिपेंडेंट चाइल्ड रादर देन इंडिपेंडेंट चाइल्ड. आप देखिए, हम बच्चे को ब्रेड लाने तक नहीं भेजते घर से बाहर. हम उसको सड़क में ही छोड़ते हैं, कुछ गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, साइकिल से गिर गया तो, बिकॉज वी मेड मोर डिपेंडेंट चाइल्ड रादर देन इंडिपेंडेंट चाइल्ड. देन प्रॉब्लम विल स्टार्ट. जैसे हम बात करते हैं आजकल उनकी लाइफ में एक ही चीज है, जो मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स नहीं है, दैट इज टेम्परेचर. 92.7, 93.5, दैट इज टेम्परेचर, नॉट मार्क्स. सो एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई सोसाइटी में, इतना मेजर चेंज हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज डेवलप हुए हैं. सो ये सारे जो इश्यूज हैं वो बहुत कॉमनली हम देखते हैं. और जो मेजर कॉमन कंसर्न है, जो हम बात करते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की, तो उसका मेजर जो चंक है दैट इज एडोलसेंट ग्रुप. क्योंकि इनके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और आगे चल के वही दे आर द लाइफ ऑफ दिस कंट्री. सो जो मेजर इश्यूज हैं उनमें सारे फिजिकल इश्यूज होते हैं. अगर हम टैकल नहीं करेंगे प्रॉब्लम विल स्टार्ट.
डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ गई है बच्चों में, अस्थमा बढ़ गया है बच्चों में, ब्लड प्रेशर बढ़ गया बच्चों में, ऑर्थोडोंटिक इश्यूज आ गए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। अभी आई वाज इन डेंटल डिपार्टमेंट, तो बोल रहे सर पहले ब्रेसेस के केसेस नहीं आते थे हमारे पास ब्रेसेस लगवाने के लिए, क्योंकि इतने कंसर्न नहीं थे बच्चे। एकदम से हमारे पास फ्लड आ गया 10 साल में। मतलब बच्चे इतने कॉन्शियस अपने टीथ को लेके, इतने कॉन्शियस अपने चेहरे को लेके कि दे वांट की ब्रेसेस होना चाहिए। तो जो ओरल हेल्थ ऑर्थोडोंटिक के जो केसेस हैं दैट हैज बीन इंक्रीज। दूसरी साइड अगर मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करूं, ड्रग बढ़ गया, अल्कोहल, टोबैको, ईटिंग डिसऑर्डर बहुत कॉमन है बच्चों में। अगर आप देखेंगे एंटी सोशल बिहेवियर आजकल बढ़ गया है, वॉयलेंस बढ़ गया है, सुसाइड। लेटेस्ट में अगर मैं बात करूं तो 15 to 24 जो रेशियो है, जो एज ग्रुप है, जो लास्ट का एनसीआरबी का डाटा वो ये बोलते हैं 1.64 लाख पीपल हैज बीन डाइड थ्रू सुसाइड, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है दैट इज मोर देन 3 लाख, राइट। तो आप सोच के देखिए वो एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सुसाइड भी वहां हो रहे हैं। इसलिए दैट इज अ मोर कंसर्न्ड एरिया व्हेन वी टॉक्स अबाउट एडोलसेंट ग्रुप और मेंटल हेल्थ का जो रिलेशनशिप में डिस्कस करूं। आजकल के बच्चे सेल्फ स्टीम को लेके बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर है, और सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सेल्फ स्टीम से। अगर किसी बच्चे की लो सेल्फ स्टीम है, इवन इफ वी टॉक्स अबाउट अडल्ट और एडोलसेंट ग्रुप, लो सेल्फ स्टीम कैन लीड टू डिप्रेशन, सुसाइड, ईटिंग डिसऑर्डर एंड delinquency. So all these disorder can generate issues and which lead finally जो लैंड करेगा बच्चा that will be in depression or suicide, no other areas. हम बात करते हैं जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं, एक्सट्रीम की जब बच्चा पहुंचता है then we will discuss. और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप सोच के देखें, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव फैक्टर। सो तीनों लेवल पे रिस्क फैक्टर भी होते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है। इंडिविजुअल की बात करें, फैमिली की बात करें, स्कूल की बात करें, तीनों लेवल पे जो रिस्क फैक्टर है वी कांट मैनेज। मैं एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। आई विल गिव अ रफ एस्टिमेशन अबाउट दिस फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की बात करता हूँ। आप सोच के देखिए, जितना पुअर अटैचमेंट होगा बच्चे का स्कूल के साथ, उतना मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। आप अपना टाइम याद करके देखें, जो भी टीचर्स यहाँ पे जो 40 के अराउंड है, 35 के अराउंड है, दे हैव देयर अटैचमेंट विद द स्कूल। जहां से उन्होंने 10वीं पास की है, अभी भी याद होगा वो स्कूल, अभी भी वो अटैचमेंट है। जब भी क्रॉस करेंगे स्कूल को, दे हैव दैट फीलिंग, यार यहाँ से 10वीं पास किया मैंने। आजकल के बच्चों में दैट अटैचमेंट इश्यूज होते हैं। बहुत सारे रीजन इसके, कुछ माइग्रेशन इतना बढ़ रहा है, कुछ सोसाइटी इतनी चेंज हो रही है, रैपिड चेंज ऑफ सोसाइटी, वी आर नॉट अटैच्ड विद स्कूल। आप याद करके देखें हमारा टाइम, हम अभी तक उन टीचर से अभी तक अटैच हैं। शायद अपने टीचर का नाम अभी तक आप नहीं भूले होंगे। एक टीचर जिस दिन आपकी तारीफ कर देता था, पूरा दिन आपका दिवाली होती थी, आपको लगता था टीचर ने ना नाम से बोला, आज मेरे को नाम से बुलाया है, दैट अटैचमेंट बोलते हैं, जो आज के टाइम में मिसिंग है। सो ये जो रिस्क फैक्टर है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटेक्टिव फैक्टर, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, वो इंडिविजुअल फैक्टर है। अगर हमारी पर्सनैलिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी बफर सिस्टम की तरह काम करेगी, वी आर मोर हेल्दी। जैसे मैंने बताया सेल्फ स्टीम का एक बेसिक रोल। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो फैमिली लेवल पे काम करते हैं। फैमिली में अगर पुअर अटैचमेंट है, फैमिली में डोमेस्टिक वॉयलेंस है, मदर फादर की अगर लड़ाई होती है, यू कैन सी योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी फैमिली में कभी ऐसा रहा होगा, आप क्लियरली चेंज महसूस कर पाएंगे कि मेरी फैमिली में ना मदर फादर की लड़ाई होती थी, उसकी वजह से मैं आज ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। So all these factors, risk as well as protective factor, plays a very very important role in child's life. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेंटल हेल्थ, जहाँ एक तरफ ये बोलते हैं बूम आएगा, दूसरी तरफ ये भी है कि मेंटल हेल्थ को हम बहुत हद तक ठीक भी कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ मैक्सिमम है हमारे हाथ में। स्ट्रेस को हमने तो बढ़ाया है, बहुत सारी चीजें हम ही तो कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं। रीजन बीइंग प्रॉब्लम विल स्टार्ट। अदरवाइज इंडियन आर मोर स्ट्रॉन्ग देन वेस्टर्न कंट्रीज। 10-12 स्ट्रेस तो हम हाथ में लेके घूमते हैं। आज दूध वाला नहीं है, आज अखबार वाला नहीं है, आज बस नहीं आई बच्चे की, आज टीचर ने कुछ बोल दिया। वी आर मोर स्ट्रॉन्ग, वी आर मोर ससेप्टिबल, वी आर नॉट ससेप्टिबल टू मेंटल इलनेस। लेकिन ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इश्यूज, राइट। उसके अलावा जो आजकल फिनोमेना देखने को मिलता है हर एज में है, नॉट ओनली एडोलसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लोनलीनेस। लोनलीनेस हर एज ग्रुप में है। दो तरह के लोनलीनेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक इमोशनल आइसोलेशन और एक सोशल आइसोलेशन। ये बड़ा कॉमन है, बिकॉज वी हैव 100,000 फ्रेंड्स बट ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप वी डोंट हैव दैट फिजिकल मोड ऑफ फ्रेंडशिप, so there is no emotional attachment with the people.
there is no social relationship with the people, and that can again lead to so many issues like painful emotional experiences, low level of self-esteem, psychological symptom of maladjustment, depression, suicidal ideation and suicidal attempt. कहाँ से लीड किया? आइसोलेशन से। 10 दिन हम आपको कमरे में बंद कर देते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, नथिंग, you should just sit with your mobile and TV. The 11th day you will develop some kind of anxiety and stress. Reason being isolation and loneliness. So all these factors plays a very important role. और इसमें जो रोल मैं बताऊं मेजरली वर्चुअल वर्ल्ड, टीवी, मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी वजह से सारा मेजर चेंज हुआ है हमारी लाइफ में, और इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर अगर आप देखेंगे, एडिक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सपोजर टू वायलेंस, सोशल रिलेशनशिप, पोर्नोग्राफी, ऑफलाइन हरासमेंट। आजकल तो एक नया कंसेप्ट है डिजिटलाइज्ड अरेस्ट, है ना? आपने सुना होगा, बहुत सारे केसेस निकल के हैं कि डिजिटल अरेस्ट हो गया कोई इंडिविजुअल। सो ऑल दिस नेगेटिव बिहेवियर बेसिकली डेवलप विद दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। एडिक्शन अगर मैं बात करूं बहुत कॉमन है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जैसे निकोटिन, अल्कोहल, कैनबिस, यूरोन। अगर प्रिवलेंस की बात करूं, मोर देन 53% ऑफ पीपल आर यूजिंग निकोटिन। अल्कोहल इज मोर देन 35%। तो बहुत अलार्मिंग और रेड अलर्ट वाला फिनोमेना भी आजकल के टाइम में अगर बात करें। सो ऑल दीज इश्यूज as I told you developed by risk experiences or some kind of psychosocial issues. बहुत मेजरली मैं बायोलॉजिकल की बात नहीं कर रहा, साइकोसोशल इश्यूज, और वही साइकोसोशल इश्यूज जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड अब्यूज, पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज, इंपल्सिविटी और एकेडमिक डिफिकल्टी। इसके अलावा कोई रीजन नहीं मिलेगा आप लोगों को। सो ऑल दिस फैक्टर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? सो अभी मैंने रिस्क फैक्टर की बात की, कुछ इश्यूज की बात की, राइट, जो बहुत कॉमनली हम देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। और इसके कुछ वार्निंग साइन भी हैं, मैं एक छोटा सा ग्लैंस में आपको बताता हूँ। जो भी हम जब मानसिक स्थिति की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, कुछ वार्निंग साइन होते हैं, जैसे नॉर्मल बिहेवियर में बहुत चेंज आना, चेंज इन ओल्ड फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बिकमिंग वेरी मूडी, जो आजकल एडोलसेंट गर्ल्स में देखने को मिलेगा, है ना? प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम, है ना? they are going with trivial issues, लड़ाई झगड़ा, gaining weight, losing weight, ये सारी issues जो है warning sign की तरह काम करती है। So we should be very careful when we talk about mental health issues, and we could be more concentrated on that particular issues, right? अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे किया जाए। डॉक्टर नेहा का एक क्वेश्चन था कि मैनेज कैसा है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, मैनेज कैसे करें। सो जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी बात यह है कि हम इन चीजों को आराम से इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल बहुत कम इसका रोल प्ले करता है। जो मेजर इश्यूज, अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो इन्फॉर्मेशन एंड स्किल मॉडलिटीज बहुत अच्छा काम करती है। इन्फॉर्मेशन एंड स्किल मींस लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को दे रहे हैं उसका मॉडल क्या है, इन्फॉर्मेशन किस वे से हम बच्चों को दे रहे हैं, दैट इज लैकिंग नाउअडेज। जो हम फील कर रहे हैं, बच्चे आजकल सीखते कहां से? दे लर्न फ्रॉम द ऑनलाइन दिस प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ना, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ट्रू या बहुत ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन्फॉर्मेशन है but that is in here and why। आप कुछ भी टाइप करो, नेट पे कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखा देगा वो, चाहे उसका मीनिंग है या नहीं है, we don't know। WHO की जो स्किल की बात कर रहा हूँ, जो 10 स्किल मैं बताता हूँ, अगर आप गूगल भी करेंगे तो you will get the 10 स्किल, that is most important skill, जैसे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कॉपिंग मैकेनिज्म, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये सब स्किल्स मॉडल है which can be a very good environment। The second foremost important आंसर वुड बी सेफ एंड स्पोर्टिव एनवायरनमेंट, जो बच्चों को चाहिए, जो आज के टाइम में नहीं है ना? पेरेंट्स का भी कहना ठीक है कि हम बच्चों के ऊपर 24/7 का विजिलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि माहौल बहुत चेंज हो गया है। आप जितने भी देखेंगे अब्यूज या रेप होते हैं, पॉक्सको में जितने होते हैं, दे आर मोर और लेस फैमिली मेंबर और रिलेटिव, जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। तो यस, वी शुड गिव सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा फील्ड है, दैट इज हेल्थ एंड काउंसलिंग सर्विसेज। आप देखो आजकल हर स्कूल में क्यों काउंसलर इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि हर जगह काउंसलिंग की सर्विस होना चाहिए, हर जगह काउंसलर होना चाहिए। व्हाई CBSE बोर्ड इज सेइंग देयर मस्ट बी काउंसलर, व्हाई NCERT इज सेइंग वी शुड गिव मोर मैटर ऑन काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंफॉर्मेशन एंड स्किल, safe and supportive environment, health and counseling services, these are the 3 important aspects which plays a very important role। और सबसे important role है जो हम बात करते हैं एजुकेशन की। वैसे तो एजुकेशन बहुत अवेलेबल है मीडिया में, अगर आप देखोगे, बट दैट इज नॉट राइट इन्फॉर्मेशन। आप कुछ भी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम वीडियो देखो,
इतनी जो डिज्नी हॉटस्टार देखो, सब जगह इंफॉर्मेशन है, बट दैट इज नॉट ट्रू। लाइक सब जगह वायलेंस दिखाया है, रेप, अग्रेशन, इंपल्सिविटी, कोई ऐसा मूवी नहीं है जो इसके अलावा आपको कुछ दिखाएगा। थ्रिलर मूवीज, so everything is they are showing, but not in the right direction. So that is another important aspect which we should consider, we should understand, right? So all these issues plays a very very important role, and we should give the significant importance this factor, right? So मैं ज़्यादा overloading नहीं करूँगा information को, so मुझे आप थोड़ा सा please सर आजकल के जो स्टूडेंट्स है ना, उनमें मतलब बच्चों में ना तो फैमिली को लेके इतनी ज्यादा अटैचमेंट है, ना मतलब को लेके, मतलब वो जैसे ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे मतलब आप किसी बच्चे को ट्रीट करोगे ना, मतलब मैं सिंपली अपने ही घर की बताती हूँ, वहाँ पे क्या है कि मतलब ज्यादा सा डांट दिया, फटकार दिया तो मतलब जैसे एक कोने में जाके छुप के बैठ गए, या गुस्से में हो गए, प्रेशर में हो गए, उनसे अगर कोई बात करते हैं किसी इशू को लेके तो ऐसे लगता है कि उनके सर के ऊपर से निकल रहा है। उस बात मेरे को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, ऐसा तो मन करता है कि दो तो लगा दे इनको, उसके बाद बात करेंगे, हाँ आप करो। तो सर सामने वाला काउंसलिंग भी कैसे करे जब तक कोई सुनने को रेडी नहीं है? बच्चे में तो अपनी बात नहीं डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको तो लगता है कि ये तो पता नहीं किस जनरेशन के हैं। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नेहा, जब मैं बता रहा हूँ जो चेंज आया ना, एकदम से रैपिड चेंज नहीं आया, विद इन 1 ईयर और 2 ईयर नहीं आया, ये स्लो चेंज आया। लेकिन हमको आजकल की जी जनरेशन बोलते हैं इसको, जेड जनरेशन, जी जनरेशन, उनका जो थॉट प्रोसेस है उनको लगता है बहुत गैप है बिटवीन मदर फादर एंड बिटवीन मी, है ना, वही इम्बैलेंस लगता है उनको भी, उनका थॉट पैटर्न लगे, हमारा थॉट पैटर्न लगे, राइट। सो इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंटली क्या है, कुछ जैसे पहले बोलते थे कि ज्वाइंट फैमिली हमेशा बड़ी अच्छी रहती थी, उसके रीजन थे ना, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली बहुत सारी चीज देती थी, हमको पता भी लगता था बीइंग पेरेंट्स, मॉरल वैल्यूज, है ना, बहुत सारी गाइडेंस वो ऑटोमेटिकली ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर देते थे, उनका एक डर था। आजकल हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, हम बच्चों में परवरिश कर रहे हैं, बच्चा हमको लगता है कि उनको एक अच्छा दोस्त बना के रखें। वी शुड बी वेरी गुड पेरेंटिंग देनी चाहिए, जो पेरेंटिंग 3 तरह की होती है। अगर हम अपनी बात करें तो जो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग है दैट इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, दैट इज द बेस्ट पेरेंटिंग मानी जाती है। अलग अलग तरह की होती है ना, तो सबमिसिव पेरेंटिंग होती है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है। तो वो पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप गूगल पे करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट, टू रियर योर चाइल्ड। उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, हमको उसको ध्यान में रख के बात करनी है। कई बार क्या होता है, हम बिहेवियर थेरेपी के बहुत सारे प्रिंसिपल तो यूज करते हैं, लेकिन बच्चे को कन्वे ही नहीं हो रहा कि हम क्या देना चाह रहे हैं उसको। तो वो सारी चीजें ना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज में इस एज रेंज को लेके, बहुत अच्छे इश्यू भी हैं जो बड़े पर्टिनेंट इश्यूज हैं, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हिच इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग एंड व्हिच फ्रीक्वेंसी वी आर यूजिंग। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Thank you, sir, for providing such an insightful information about various psychiatric disorders. We can apply this information in our day-to-day life. So now the house is open for discussion. So now I request you all to please ask your question. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। बच्चों में जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा है वो एडोलेसेंट एज में पहुंच जाता है, टीनेज एज में, और उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस डेवलप नहीं होते हैं, तो क्या ये बायोलॉजिकल होता है या सोशियो कोई फैक्टर है उसकी वजह से होता है? डॉक्टर फैसल, मुझे लगता है सोनी सर का शायद डिस्कनेक्ट शायद हो गया है उनका। यस सर। अभी शायद वो कोई नेटवर्क इशू होगा, तो अभी वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो आप अपना प्रश्न एक बार तब रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, यस, ही हैज कम बैक। राइट सर। सो सारे इश्यूज हम डिस्कस, शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया हमारी तरफ से, आई एम सो सॉरी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था अभी जो मैंने पूछा, जो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी जी। कुछ बच्चों में जो इमोशंस और फीलिंग्स जो डेवलप होती हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती हैं एडोलेसेंट एज पे पहुंचने के बाद भी, यानी जो फ्रेंड सर्कल से जो उनका कनेक्शन होता है वो अलग होता है जी, लेकिन रिलेटिव और पेरेंट के साथ जो इमोशंस डेवलप होने चाहिए या ब्लड रिलेशनशिप में जो इमोशन डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और जैसे
किसी के साथ अगर कोई हादसा होता है, उसका जो दर्द महसूस होता है, वो दर्द उनको महसूस नहीं होता, इमोशंस उतने डेवलप नहीं हो पाते। तो क्या ये इसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या सोशियो फैक्टर्स होते हैं कुछ इस तरह के? सर बेसिकली फैजल साहब, मैं आपसे बताऊं कि अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो 3 पिलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब हम बच्चों की बात करते हैं। जी बच्चों में 3 इश्यूज होते हैं, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और एक इमोशनल डिसऑर्डर। जी बिहेवियरल डिसऑर्डर जब हम बात करें, जैसे एडीएचडी की बात करें, कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करें, ओडीडी की बात करें, वो है बिहेवियरल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल की बात करें तो ऑटिज्म आपने सुना होगा शायद, बड़े कई मूवीज और सीरियल बने हैं। माय नेम इज अंतरा एक बड़ा अच्छा सीरियल था, माय नेम इज खान एक मूवी है, दैट इज ऑटिज्म। जो इमोशनल डिसऑर्डर है, इमोशनल इश्यूज है, वो बच्चों में आजकल बहुत कॉमनली देखे गए हैं। रीजन भी वन मेजर रीजन इज मीडिया डिजिटलाइजेशन। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बच्चा हमारे पास आता है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो जब जॉब पे जाते हैं तो अपने बच्चे को मेड के हाथ, आजकल मेड रह गई है, वो उसकी परवरिश करती है। तो मेड क्या करती है, जब खाना बनाती तो टीवी ऑन करके खाना बना लेती, पोछा झाड़ू करती। वो छोटा भीम देखना शुरू कर दिया, 3 साल का बच्चा। 6 मंथ के बाद उसने ऑटिज्म डेवलप कर लिया। कैन यू इमेजिन? अब उसके अंदर छोटा भीम, कालिया, जग्गू सब उस बच्चे के अंदर आए। एंड दिस इज इरिवर्सिबल, नो इमोशन एट ऑल। So media plays a very important role in this particular direction. हमारे पास कई पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये बोलना लेट सीखा है इसने, और वो क्या करते हैं, खाना खाते हुए बच्चे के हाथ में फोन होता है। हमने उसको बोला कि आप फोन को एक बार रिमूव करो, जी बच्चा रोएगा, खाना नहीं खाएगा, नो इशू एट ऑल। विद इन अ वीक उसका स्पीच डेवलप हो गया बच्चे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस मीडिया एक्सपोजर और आजकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी नहीं है, वो ये बहुत सारे रोल और है साइको सोशल रादर देन बायोलॉजिकल। मैं बोलूँ तो इमोशनल इश्यूज में तो मेजर रोल होता है, वो साइको सोशल इश्यूज होते हैं, जो जिसमें सबका रोल है। नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स बट एवरीबॉडी सराउंडेड, टीचर्स, सबका पेशेंस लेवल आजकल कम है। आप देखो, मैं एक पीटीएम में जाता हूँ, मैं एक स्कूल में गया एक लेक्चर लेने, तो दे सेड, बहुत रिनाउंड स्कूल चंडीगढ़ का, दे सेड कि जी दूसरी क्लास के बच्चे सेकंड क्लास के शोर बहुत मचाते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि 2 साल के बच्चे को आप कितना चुप करोगे भाई? ये इज ओन वर्ल्ड। वो जब घर से आता है तो उसके पास बहुत सारी चीजें बताने के लिए, मम्मी के बारे में बताएगा, पापा के बारे में बताएगा, फैमिली के बारे में बताएगा, आपकी क्यूरियोसिटी जानेगा। हम उसको चुप कराने की सोचते हैं। टीचर कहती है हमें ऐसा क्लास चाहिए बिल्कुल चुप रहेगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? वी आर नॉट रियरिंग चाइल्ड, वी आर रियरिंग रोबोट, फ्रैंकली स्पीकिंग। वी आर रियरिंग मैकेनिकल बना दिया सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी मैकेनिकल। जब हम बोले चुप हो जा तो बच्चा चुप हो जाता है, जब हम बोले अब बात कर, अब बात कर रहा है, इस टाइम सोना है, इस टाइम सो जाना चाहिए। एवरीथिंग इज वेरी मैकेनिकल। ऐसा पहले नहीं होता था ना सर। ज्वाइंट फैमिली आप सोच के देखो, दादा के पास कोई गया, रात को 12 बजे तक बात कर रहा है, 1 बजे तक बात कर रहा है, वो अकेले थे, उसको टाइम दे रहे हैं। और बच्चे को समझने के लिए यू वांट टू बिकम अ चाइल्ड, सिंपल है। बच्चों का एक फॉर्मूला है सर। सो वो इमोशंस और बहुत अच्छे डेवलप भी हो जाते हैं इनके अंदर, ये अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे में इश्यूज है, बट वी कैन करेक्ट दैट इशू विद डिस्कशन। अच्छा, आजकल जो सर ये जो स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है बच्चों का, स्क्रीन टाइम अब जो मदर्स हैं उनमें ये कहा जाता है कि वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं तो उनको जो है उड़ा दिया जाता है वो मोबाइल, और मोबाइल लेकर के फिर वो शांत बैठ जाते हैं, और फिर मदर्स जो हैं अपना काम कर लेती काम करती हैं जी, जो वो गलत है सर जी। वो और ये इसकी वजह से क्या है, वो जो कुछ हाइपर एक्टिविटी बच्चों में आ जाती है, हाइपर मतलब टेंशन और इरिटेशन बहुत होता है बच्चों में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो ये सारे फैक्टर्स ये, लेकिन स्क्रीन टाइम का जो रोल बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली स्क्रीन टाइम का बहुत रोल है, बहुत रोल है सर जी। और ये बहुत जनरेशन को, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये तो आने वाला, जैसे आपको याद होगा एक गेम आया था ब्लू व्हेल जी, है ना। ब्लू व्हेल एक बहुत पुराने बच्चे खेलते थे, उससे कई बच्चों ने अपने आप को मारा, हार्म किया है, सुसाइड भी किया है। तो जो ब्लू व्हेल के जो ओनर थे, उनकी बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी कि मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चे जो फिजिकली वनरेबल है, साइकोलॉजिकल वनरेबल है, वो मर जाने चाहिए। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। क्योंकि वही बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका साइकोलॉजिकल वीकनेस, आप सोच के देखिए, सब बच्चे थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ना एक फ्लिप सिस्टम होता है सर। एक बार स्टार्ट हुआ, देन साइकोलॉजिकल दे विल गो इन अ डाउन ड्रिफ्ट थियरी, दैट विल स्टार्ट। तो क्या ऐसे बच्चों के साथ काउंसलिंग जरूरी है? काउंसलिंग डेफिनेटली सर, डेफिनेटली यस, दैट कैन बी वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल सर। काउंसलिंग क्या काउंसलर लेवल पे या पेरेंट्स अपने लेवल पे भी काउंसलिंग? सर दैट्स डिपेंड,
पेरेंट्स बहुत अच्छे अपने लेवल, क्योंकि पेरेंट्स तो सबसे अच्छे क्लोज तो बच्चे वही हैं सर, दे कैन गिव अ वेरी गुड मैनेजमेंट। लेकिन पेरेंट्स को जहाँ लगे कि हम स्टक हो गए, हमें पता नहीं आगे कैसे, जैसे भी मैं एक IIT में गया रिसेंटली, तो वहाँ उसके पेरेंट्स ने एक प्रॉब्लम बताया कि बच्चे बस में जब स्कूल जाते हैं तो एक सीनियर बच्चा पोर्न देखता है, तो उसको ना ये पोर्न देखना शुरू कर दिया। मेरा 6 साल का बच्चा, उसको पोर्न की आदत पड़ गई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे उससे इंटरवीन करूँ। कैन यू इमेजिन? बोला हम, हमारी नींद उड़ गई सर, दिन सुबह की, रात की, शाम की, दोनों। हम प्रोफेसर हैं IIT में, और हमारे बच्चे जब हमको पता लगा तो वी वर शॉक्ड। तो आई सेड कि आप इंटरवीन कीजिए, हम आपको बताएंगे इंटरवीन कैसे करना है, रादर देन यू कम टू द काउंसलर। बच्चे को स्टिग्मेटाइज नहीं करते हैं कि आप काउंसलर के पास गए, आपको ट्रीटमेंट का जरूरत है, वी कैन गाइड यू बट यू कैन डू एट होम। कोई मॉडलिटीज हैं सर, हम वी कैन यूज। और किसी का कोई क्वेश्चन है? गरिमा, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? गरिमा, पुनीता? Sir, I just want to ask one thing, that can I get recording of this session as I joined late? Yes, you can. Yeah. Okay, thank you, sir. I missed most of the part of this conversation. Do you have any question? We will send you the link of the Okay. recording. No issue. Not right now, sir. Thank you for asking. Okay. सर आपने बताया कि जैसे स्ट्रेस के कई रीजंस ऐसे होते हैं जो मतलब आपके हाथ में नहीं होते, तो उनसे कैसे डील किया जाता है? क्योंकि जैसे- यही स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते तो डिप्रेशन में आ जाता है। एक एग्जांपल दें मेरे को, जैसे कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? सर मैं तो सच बताऊं, मुझे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आता। नहीं जी, तो स्ट्रेस तो होना गलत बात थोड़ी है, स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को डील कैसे करना है? मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, देखो मेरे साथ क्या होता है, मतलब मैंने कोई चीज फिक्स की है जैसे ब्रेन में सुबह सुबह की, मतलब मुझे आज ये काम करना है या ये करना है, तो मेरा वो एग्जैक्टली उस टाइम पे अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है, जैसे सपोज मुझे कुछ पढ़ना है, मैंने सोचा मुझे ये पढ़ना है, बीच में कोई पेशेंट आ गया, तो मतलब मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि ये क्यों आया, जब मैं पढ़ रही हूँ तो क्यों आया है। मैम देखो ना, इसमें एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ डॉक्टर ने, हमारी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत रोल प्ले करती है। आपकी जो पर्सनालिटी नहीं सर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मतलब आज से 4-5 साल पहले वैसी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं खुद जॉइन डेफिनेटली, बट अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं पता नहीं किसी भी बात पे चिढ़ जाती हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपको पता है ना, इतना तो मिररिंग है आपको, इतनी तो इंसाइट है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक नहीं है, चीजें गलत है कि मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी पेशेंट्स को लेके परेशान हो जाती हूँ, बहुत अपने काम में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो मेरे को एडजस्ट नहीं होता। जब इतनी इंसाइट है तो जस्ट ट्राई टू चेंज इट, सिंपल है। कुछ चीजें ना बड़ी इजीली ठीक कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं मुश्किल है ये हमारी चीजें एक्टिविटी की कैसे करें सर? बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, जितनी भी आप एक्सरसाइज, योगा, लाइफस्टाइल चेंजेस है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। योगा बहुत हेल्पफुल है, माइंडफुलनेस बहुत हेल्पफुल है, जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। आपका जो लाइफस्टाइल हो सकता है बहुत हाई लेवल पे हमेशा चलता हो, ये भी काम करना, मल्टीटास्किंग है, ये भी करना है वो भी करना है, इतने बजे ये फिनिश करना है, इतने बजे ये फिनिश करना है। ट्राई टू स्लो डाउन फर्स्ट। ठहराव बहुत जरूरी लाइफ में, हाँ ठहराव, नहीं तो इसी भीड़ में भाग रहे हैं बिना बात के, मतलब कुछ है नहीं। अगर आप 5 मिनट मैसेज चेक नहीं करेंगे तो भी कोई आग नहीं लगने वाली, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज आया, जीरो इनबॉक्सिंग फिनोमेना बोलते हैं, जीरो इनबॉक्सिंग फिनोमेना, मैसेज आया तभी रिप्लाई करना है मेरे को, खाली नहीं रख सकता मोबाइल में, इमीडिएटली जीरो इनबॉक्सिंग। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम मैनेज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जब कोई इंसाइट है कि हाँ यार मेरे को इसको ऐसे टैकल करना है, थोड़ा सा शेड्यूल बनाया आप थोड़ा सा, जैसे मतलब आंखें बंद करके जैसे मेडिटेशन के लिए ट्राई करते हैं ना, वो सारी चीजें और ज्यादा एकदम से ब्रेन में आके और ऐसे करने लग जाती है। नीरज से ना कभी भी जब टाइम मिले नीरज से बात करना, इसने यहाँ देखा होगा पीजीआई में रिलैक्सेशन वगैरह सिखाते हैं, जेपीएमआर सिखाते हैं, शी कैन गाइड यू, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, राइट। Dr. Neeraj, you may proceed. Thank you, sir, for taking queries of participants. Now we conclude this program here. Now I would like to request Dr. M.R. Faisal, AID, to propose formal vote of thanks. Thank you, Dr. Neeraj. As we come to the end of this valuable session,
on the current mental health scenario and issues and challenges. It's my privilege to offer our sincere thanks on behalf of everyone here. First, a big thank you to our respected guest, Dr. Krishna Kumar Soni ji. Sir, your insights into the mental health challenges we face today have helped us all understand this important topic better. We truly appreciate the time you have given us and all the wisdom you have shared. Our gratitude also goes to Dr. Ashok Sharma ji, the Senior Regional Director of Regional Center Delhi 3, who is the spirit behind today's session. Thank you, sir, for making this session possible and supporting us throughout. To our IGNOU learners, thank you for attending and showing such great interest in today's session. Your involvement encourages us to bring more programs like this. And a special thanks to Dr. Neeraj for organizing and managing today's program. Your hard work and careful planning have made this session successful, and we are very grateful to you. Finally, thank you to the entire staff at Regional Center Delhi 3 for your support in making today's session run smoothly. Thank you everyone for joining us today. Let us all continue working to raise awareness about mental health and find solutions to the challenges ahead. Thank you. Dr. Faisal, thanks goes to our colleagues at RC Kolkata also. They are also with us in this Google meeting since the beginning of this session. Thank you so much. And I am extending my invitation to Dr. Soni for kindly visiting our regional center also whenever he comes to Delhi. You are most welcome, sir. Definitely, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Raksha. Thank you, Neeraj madam. Thank you.